during the rule of Pratap Singha itself. He introduced two ministerial posts, Borborua and Borfukon, and the first Borborua, Mumai Tamuli Borborua, created a system known as the Pike system, where every adult male between 15 to 50 was registered as a Pike. আমি এই সিস্টেমটো বিষয়ে যোৱাকালি কথা পাতিলো। জয়ধ্বজ সিংহ তেওঁৰ সময়ত আমি আকৌ পাওঁ কি দ্য ইনভেজন বাই মিৰ জুমলাছ ইনভেজন, আৰু এটা ট্ৰিটি সাইন কৰা আমি পাওঁ, দ্যাট ইজ ট্ৰিটি অফ গিলাজাৰি ঘাট ইন দ্য ইয়াৰ 1663। নেক্সট ইজ দ্য চক্ৰধ্বজ সিংহ, তেওঁৰ সময়ত আমি কি পাওঁ, চক্ৰধ্বজ সিংহৰ সময়ত যে তেওঁ কি কৰিলে, লাচিত ডেকাক বৰফুকন হিচাপে এপইণ্ট কৰিছিলে। দেন দ্য বেটেল অফ আলাবয় ইন দ্য ইয়াৰ 1669, বেটেল অফ আলাবয়। And last was the Udayaditya Singha আমি পাইছিলো, যাৰ সময়ত আমি বেটেল অফ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ বিষয়ে আমি পালো, য'ত মুঘল ফোৰ্সক কোনে লিড কৰি আছিলে, ৰাজা ৰাম সিং during the battle of Alaboy and Saraighat in both. And Ahom force was led by Lasit Borfukon, where the Mughals have to defeat, তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা হৰুৱাই পঠোৱা যায়। Then আমি আকৌ কি পালো, আমি আকৌ কি পাওঁ যে after the death of Lasit Borfukon we find a period of political instability। যোৱাকালি আমি এইটোও চালো, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी केनेकुआ किस तरीके का कि यहाँ पर राजा तो हुआ करते थे लेकिन राजा के पास पावर नहीं हुआ करता था। यस, চুকাফাৰ পাছত তো আমি আৰু এটা ক্ৰনলজি পাইছিলো, চুকাফা, সুতেউফা, সুবিনফা, সুখাংফা, সুখৰাংফা, চোপলাই, তাওখামতি, আমি এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বুলি আমি ক'লো আমাৰ কাৰণে। তাৰপিছত আমি নেক্সট চালো চুদাংফাৰ বিষয়। চুদাংফাৰ পিছত আৰু আমি কিছুমান ৰুলাৰৰ নাম পাওঁ, আহোম ৰুলাৰ, that are not too much important from exam perspective. Then next important one is the Suhumbu। মই chronologically important ৰুলাৰৰ নামবোৰহে লিখি গৈ আছো। তাৰপিছত সুখামফাৰ পিছত নেক্সট ইজ দ্য প্ৰতাপ সিংহ, সুচেংফা বুলিও জনা যায়। Actually, this is not the chronological order. This is not the correct chronological order. Correct chronological order to মই PPT already দেখাইছিলো আপোনালোকক, যে চুকাফাৰ পিছত সুতেউফা, সুবিনফা, it is written there in the PPT। গোটেই কেইজনৰ নাম লিখি দিয়া আছে, কিন্তু মই এওঁলোকৰ নাম পঢ়িব নালাগে বুলি কওঁ, কিয়নো just if you want to remember the chronology then you can remember all this name, but no need। আফটাৰ চুকাফা আমি এইখিনি ৰজাৰ বিষয়ে পাওঁ, সুতেউফা, সুবিনফা, সুখাংফা, সুখৰাংফা, সুতুফা, তাওখামতি, চোপলাইতো লিখাও নাই, নট টু মাচ ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড চিমিলাৰলি ইয়াতে আকৌ চুদাংফাৰ পিছত আৰু কিছুমান ৰজাৰ নাম পাম, তেওঁলোকো আমাৰ কাৰণে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বিকজ মই কি কৈছিলো যে দে ৱাৰ ভেৰি বিজি ইন কনচলিডেটিং দেয়াৰ পজিশ্যন। তেওঁলোকৰ সময়ত তেনেকুৱা কিবা ইভেন্ট হোৱা নাই যে আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগে বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে সোধে এক্সামত। সেইকাৰণে মই এওঁলোকৰ নামবোৰ যেতিয়া মই ৰিভাইজ কৰোঁ, এওঁলোকৰ নাম মই একেবাৰে স্কিপ কৰিয়ে যাওঁ। তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি বেছিকৈ পঢ়িব লাগে যাৰ সময়ত কিবা হৈছিলে। ঠিক আছে, তো সেই ক্ৰনলজি হিচাপে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছিলো, আৰু লাষ্ট আমি পাইছিলো কলৈকে যে দ্য পিৰিয়ড অফ পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি, ৱেৰ the king was there but the ultimate authority was in the hands of a minister। যেনেকৈ আমি কাৰ বিষয়ে পালো, প্ৰথমে দেৱেৰা এজন আছিল হাজৰিকা। তেওঁ কি কৰে, তেওঁ উদয়াদিত্য সিংহক মাৰিবলৈ বুদ্ধি দিয়ে। কাক? উদয়াদিত্য সিংহৰ ভাইটি ৰামধ্বজ সিংহক কয় যে তই নিজৰ ককায়েকক মাৰি দে, মই তোক ৰজা বনাই দিম। তো ৰামধ্বজ সিংহই উদয়াদিত্য সিংহক মাৰি দিলে পয়জন দি। তাৰপিছত নেক্সট ৰজা কোন হ'ল? ৰামধ্বজ সিংহ নেক্সট হ'ল। আৰু তেওঁ নিজে দেৱেৰা হাজৰিকা আছিলে, তেওঁ বৰবৰুৱা হিচাপে নিজকে এপইণ্ট কৰাই লয়, আৰু নতুন অৰিয়েণ্টেশ্যন এনেকুৱা প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে যে কোনেও এওঁৰ এগেইনষ্টত একো মাত মাতিবই নোৱাৰে, ইভেন দ্য কিং কাণ্ট। তাৰপিছত যেতিয়া ৰামধ্বজ সিংহই গম পালে যে ৰজা তেওঁ নামৰ মাত্ৰ হয়,
আল্টিমেট পাৱাৰ কাৰ হাতত আছে, দেবেৰাৰ হাতত আছে। যেতিয়া এই কথা ৰামধ্বজ সিংহ গম পায় আৰু ইয়াৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিবলৈ যায়, তেতিয়া দেবেৰা অলসো কিল্ড ৰামধ্বজ সিংহ। দেন প্লেসড এনাদাৰ প্ৰিন্স ইন দ্য থ্ৰোন নন এজ সুহুং। সুহুং মাত্ৰ 21 দিন শাসন কৰে। যেতিয়া 21 দিনৰ পিছত তেওঁ দেবেৰাৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিবলৈ গৈছিলে, তেতিয়া তেওঁকো মাৰি দিয়া যায় আৰু এজন ৰজা যাৰ নাম আছিল গোবৰ, তেওঁক ৰজা বনাই ৰাখি দিছিলে। এই গোটেইখিনি কাণ্ড হৈ আছিল কত? ये सब कांड कहां पर हो रहा था? अहोम कैपिटल में, गौड़गांव में। गौड़गांव में हो रहा था। और इधर गुवाहाटी में कौन बिजी? अतनु बुरागोहाई बिजी थे। आफ्टर द बैटल ऑफ सराइघाट, अतनु बुरागोहाई वाज देयर इन फोर्टिफिकेशन। और निजर कामबुर शेष কৰি যেতিয়া আহোম ক্যাপিটাললৈ গুচি যায় অতন বুঢ়াগোহাঁই, তেতিয়া এই সিনাৰিঅবোৰ দেখা পায় অতন বুঢ়াগোহাঁইয়ে যে ইয়াতে তো ৰজা চেঞ্জ হৈ আছে আৰু আল্টিমেট পাৱাৰ ৰজাৰ হাতত নাই, বেলেগ কাৰোবাৰ হাতত আছে। তো অতন বুঢ়াগোহাঁইয়ে প্ৰথমে গৈ কি কৰে, দেবেৰা আৰু গোবৰ দুইজনকে মাৰি দিয়ে। তো গোবৰে কিমান দিন ৰুল কৰিবলৈ পায়? মাত্ৰ 24 দিন ৰুল কৰিবলৈ পায় গোবৰে। তো আটাইতকৈ কম সময় ৰুল কৰা আহোম ৰজা কোন? ইট ইজ দ্য সুহুং। 21 দিন ৰুল কৰিলে। তাৰপিছত অতনু বুঢ়াগোহাঁইয়ে গৈ দেবেৰা আৰু গোবৰ দুইজনকে মাৰি দিয়ে। পিছত তেওঁক কোৱা যায় যে আপুনি নিজে ৰজা হওক। তেওঁ কয় যে ৰজা হবৰ কাৰণে মই ৰাজঘৰৰ পৰা নহয়, আই এম নট ফ্ৰম দ্য ৰয়েল ফেমিলি, চ' এ মিনিষ্টাৰ কেন নেভাৰ বিকাম এ কিং। তাৰপিছত কাক ৰজা বনোৱা যায়? এজন আহোম প্ৰিন্স যাৰ নাম আছিলে চুজিংফা। কিন্তু ইয়াতেও কি হৈছিলে যে ডিভিজন অফ সাপোৰ্টাৰ্স, কাৰোবাৰ কোনোবা আছিল এওঁৰ সাপোৰ্টাৰ, কোনোবা আছিল এওঁৰ সাপোৰ্টাৰ। কিবা এটা কনফ্লিক্টত অতনু বুঢ়াগোহাঁইৰ সাপোৰ্টাৰ সকলে গৈ চুজিংফাক মাৰি পেলালে। তাৰপিছত আকৌ এজন ৰজা, এজন প্ৰিন্সক ৰজা বনাই দিয়া যায়, নন এজ সুদেইফা। এতিয়া কি হৈছিলে যে অতনু বুঢ়াগোহাঁইয়ে নিজৰ মতে মন্ত্ৰীবোৰ চেঞ্জ কৰি আছিলে। তাৰ এনেতে তেওঁ কাক চেঞ্জ কৰি দিছিলে? লালুকখোলা বৰফুকন হিচাপে আছিলে, কিন্তু অতনু বুঢ়াগোহাঁইয়ে এওঁক বৰফুকনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে। যেতিয়া লালুকখোলা বৰফুকনৰ পদবীৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে, তেতিয়া লালুকখোলা বৰফুকনে গৈ হেল্প বিচাৰে কাৰ লগত? আজাম শ্বাহৰ লগত হেল্প বিচাৰে। আৰু আজাম শ্বাহে কি কয় যে ঠিক আছে মই হেল্প কৰিম, কিন্তু মই কি পাম? মই গুৱাহাটী দি দিম বুলি ক'লে লালুকখোলা বৰফুকনে। চ' লালুকখোলা বৰফুকনে আজাম শ্বাহক কি গুৱাহাটী হেণ্ড অভাৰ কৰি দিয়ে 1679। ফলত লালুকখোলা বৰফুকন কি হৈ যায়? ডি ফেক্টো ৰুলাৰ হৈ যায়। আৰু তেওঁ এজন কি কৰে? 14 বছৰীয়া ল'ৰা, যাক আমি পপুলাৰলি কি বুলি জানো? লৰা ৰজা, বা যাৰ আহোম নাম চুলিকফা, তেওঁক ৰজা বনাই দিয়ে আৰু তেওঁ শাসন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু এওঁৰ শাসনতে আমি কি পাইছিলো যে তেওঁ এটা নতুন অৰিয়েণ্টেশ্যন উলিয়াইছিলে যে এনি প্ৰিন্স হেভিং এনি কাইণ্ড অফ ফিজিকেল ডিফৰ্মিটি উইল নট বি এবল টু সিট অন দ্য থ্ৰোন। যদি যিকোনো প্ৰিন্সৰ যদি ফিজিকেল ডিফৰ্মিটি থাকে, শৰীৰত দাগ কটা চিঙাও থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰজা হ'ব নোৱাৰে বুলি তেওঁ অৰিয়েণ্টেশ্যন দিছিলে। আৰু সেই অৰিয়েণ্টেশ্যনৰ মতে তেওঁ বহুখিনি আহোম প্ৰিন্সক কাৰোবাৰ হাত কাটি দিলে, কাৰোবাৰ কাণ কাটি দিলে, যাতে তেওঁলোকে ৰজা হ'ব নোৱাৰক। এণ্ড লালুকখোলা বৰফুকনৰ মেইন টাৰ্গেট কোন আছিলে? গদাপানী। আৰু গদাপানী ৱাজ ৰমিং ইনকগনিটো, নিজৰ চেহেৰা লুকাই লুকাই তেওঁ ঘূৰি ফুৰি আছিলে। আৰু লালুকখোলা বৰফুকনে আৰ্মি পঠিয়াই দিছিল এওঁক ধৰিবৰ কাৰণে। যেতিয়া গদাপানীক ধৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া গদাপানীৰ প্ৰেগনেন্ট ৱাইফ, কি নাম? জয়মতীক ধৰি লৈ আহে আহোম কোৰ্টলৈকে। আৰু এওঁৰ লগত ইণ্টাৰোগেট কৰা যায়, সোধা যায় তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ বিষয়ে। বাট शी refused to say anything about her husband। তাৰপিছত জয়মতীক কলৈ লৈ যোৱা যায়? জেৰেঙা পথাৰলৈ লৈ যোৱা যায় আৰু এওঁক তাতে টৰ্চাৰ কৰি কৰি মাৰি দিয়া যায়। যেতিয়া লালুকখোলা বৰফুকনে ইমানখিনি এট্ৰচিটিজ বাঢ়ি গ'ল লালুকখোলা বৰফুকনৰ, তাৰপিছত কি কৰা যায় যে ভূতাই, মাধা তামুলী বা ঘনা কাছাৰী কিছুমান নোবেলছ সকলে গৈ লালুকখোলা বৰফুকনৰ ঘৰতে গৈ লালুকখোলা বৰফুকনক মাৰি দিলে আৰু গদাপানীক নেক্সট কিং হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰে, অলসো নন এজ গদাধৰ সিংহ।
কেতিয়া 1681 1681 আকৌ গদাধৰ সিংহক ৰজা হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া যায়। তো যেটো পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটিৰ পিৰিয়ড আছিলে কেতিয়াৰ পৰা আফটাৰ দ্য ডেথ অফ লাচিত বৰফুকন, দ্যাট মিন্স ইন 1673 পৰা এই ইনস্টেবিলিটিৰ পিৰিয়ড কেতিয়া গৈ শেষ হয় 1681 গৈ শেষ হয়, যেতিয়া গদাধৰ সিংহ আকৌ ৰজা হল। ঠিক আছে, এতিয়া এতিয়া গুৱাহাটী কাৰ হাতত আছে? আজাম শাহ মানে মোগলৰ হাতত আছে। এতিয়া যেতিয়া গদাধৰ সিংহ ৰজা হল তেওঁ কি কৰে আকৌ আৰ্মি পঠিয়াই দিয়ে গদাধৰ সিংহই টু ৰিকেপচাৰ গুৱাহাটী ফ্ৰম দা মোগলৰ হাতৰ পৰা গুৱাহাটী ৰিকেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আকৌ আৰ্মি পঠিয়াই দিয়ে আৰু গদাধৰ সিংহৰ আৰ্মিয়ে আহি মোগলৰ লগত ফাইট কৰে নিয়াৰ শুক্লেশ্বৰ টেম্পল গুৱাহাটী। আৰু ইয়াতে যেটো লাষ্ট বেটেল হয়, দ্যাট বেটেল ইজ নोন এজ the Battle of Itakuli in the year 1682, and this is the last battle fought between the Ahom and Mughal. The first battle was the Battle of Samdhara in 1616, and the last battle was the Battle of Itakuli near Sukleswar Temple, Guwahati, where again Mughals were defeated. मुगल्स को हरा देते हैं, मुगल्स वर डिफिटेड एंड আগতে ট্রিটি অফ আসুৰৰ আলি মতে বাউন্ডাৰী কি আছিল? বাউন্ডাৰী বৰনদী ৰিভাৰ। According to the Treaty of Asurar Ali, Bornodi River was the boundary between the Ahom and Mughal. But after this battle of Itakuli, তেওঁলোকে কি কৰে মুঘল সকলক খেদি খলুই পঠুৱাই দিয়ে, মুঘল সকলক মানস ৰিভাৰ লৈকে খেদি পঠিয়াই দিয়ে, মানস ৰিভাৰ, and river Manas became the boundary between the Ahom and Mughal now after this battle 1682. So this was the last series of battle. This was the last series of battle between the Ahom and Mughal. ঠিক আছে, অনলাইন আপোনালোকে বুজি পাই আছে নে? চন্দন অলৰাউন্ডাৰ ওকে। গদাধৰ সিংহ যাৰ আহোম নেম সুপাতপা। সো তেওঁ কি কৰিছিলে যে তেওঁ নিজৰ কেপিটেল চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁ নিজৰ কেপিটেল এবাৰ লৈ গৈছিল কলৈ? বৰকলা নামৰ ঠাইলৈ। বাট তেওঁ পিছত গম পায় যে হি ৰিয়েলাইজ দ্যাট হি শিফটেড ৱাজ আ মিষ্টেক। আকৌ কেপিটেলটো উভতাই লৈ আহে গড়গাঁৱলৈ। ঠিক আছে, গড়গাঁৱত আছিলে, তেওঁ বৰকলালৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু আকৌ capital উভতাই লৈ আহে গড়গাঁৱলৈকে। And on ascending the throne, Godadhar Singh sent large army to recapture Guwahati, and the last series of battle between the Assamese and the Mughal took place near Itakuli, at Itakuli near Sukleswar, known as the Battle of Itakuli, where Mughals were defeated and the river Manas remained the boundary between the Mughal and Ahom. So a boundary to monot rakhibo. Treaty of Asror Ali mate boundary asile Bornodi river, and after this battle of Itakuli the boundary was the Manas river. Aru ki kore je he was the first ruler to introduce a system of the survey and the measurement of land. Teu prothom jon Ahom raja june land survey ba land measurement korisile boli koa jay. And also though not a Shaktist, teu shakti puja kora nasile, devi puja kora nasile, তথাপিও তেওঁ পিকক আইল্যান্ডত এটা টেম্পল বনোৱায়। পিকক আইল্যান্ড মানে আমাৰ স্মলেষ্ট ৰিভাৰাইন আইল্যান্ড, য'ত উমানন্দ টেম্পল আছে। তেওঁ পিকক আইল্যান্ডৰ ওপৰত কি বনায়? উমানন্দ টেম্পল বনোৱায়। তো ইয়াৰ পিছতো এটা কাৰণ আছে যে যদিও তেওঁ শক্তিষ্ট বা দেৱী পূজা কৰা নাছিলে, তথাপিও তেওঁ এই টেম্পলটো কিয় বনোৱাইছিলে?
উমানন্দ টেম্পলটো যদি আমি এইটো কথা চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখা পাওঁ যে এই সময়ত গদাধৰ সিংহৰ সময়ত আমি দেখা পাম যে বৈষ্ণৱিজম বা we can say the influence of Satra were growing. সত্ৰৰ ইনফ্লুয়েন্সবোৰ বাঢ়ি গৈ আছিলে বুলি কোৱা যায়। কেনেকৈ গম পায় তেওঁ এই কথাটো কেনেকৈ এনালাইজ কৰে সত্ৰৰ ইনফ্লুয়েন্স বাঢ়ি গৈ আছে যে another reason for the grievance of Gadadhar Singha was the Banamali Bapu, the Satradhikar of Dakhinipat Khatra. দক্ষিণীপাত সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ যাৰ নাম আছিলে বনমালী বাপু যেতিয়া ৰজাই কিবা হেল্প বিচাৰিছিলে বা ৰজাই কিবা সাপোৰ্ট বিচাৰিছিলে তেতিয়া এওঁ দক্ষিণীপাত সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ বনমালী বাপুৱে ডাইৰেক্টলি ডিনাই কৰি দিয়ে। এতিয়া এনেকুৱা ইনसिडेंट बहुत कम হয় যে रजा যদি কিবা বিচাৰিছে কোনোবাই सामने से कोई डिनाई कर दे, ये बहुत कम होता था। ठीक है, अब इनको लगा कि यार इन्होंने क्यों डिनाई किया, मैंने कुछ सपोर्ट भी मांगा था उनसे, इन्होंने डिनाई क्यों किया। जब वो एनालाइज करते हुए गए तो इनको क्या पता लगता है, इनको पता लगता है कि सत्र के अंदर जो सत्राधिकार होते हैं जैसे कि बनमाली बापू, इनके अंदर में क्या होंगे डिसाइपल्स, शरणार्थी। ठीक है, इनके अंदर में जो डिसाइपल्स हैं वो उनका नंबर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, काफी ज्यादा डिसाइपल्स हो चुके हैं सत्राधिकार के अंडर में। जैसे कि आहोम राजा के अंडर में क्या होते हैं पाइक्स, ठीक है, पाइक्स जो राजा के लिए काम करते, ठीक उसी तरीके से सत्राधिकार के अंडर में जो डिसाइपल का नंबर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो ये सत्राधिकार मुझे ही चैलेंज कर देगा किसी दिन। ठीक है, ये सोचते हुए इन लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो कैसे कम करे वो सोचते हैं एक बार। ठीक है, पता लगता है कि सत्र के अंडर में क्या हुआ था कि जो सत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे अगर हम बात करें किसके बारे में, आपने सुना होगा एक टर्म, ये सुना है केवालिया भोकत। पाइक सिस्टम में क्या होता था, पहले इसको देख लेते हैं बैकग्राउंड को। पाइक सिस्टम में क्या होता था कि आहोम किंगडम के अंदर रहने वाले सारे 15 से 50 साल के मेल मेंबर को जाके स्टेट के लिए काम करना होगा। ठीक है, लेकिन दिस इज एग्जेम्प्टेड फॉर समवन, ये किसी के लिए, जैसे नोबेल्स हो गए आहोम के, जैसे ऑफिसर्स हो गए आहोम के, उन लोगों को जाके पाइक सर्विस करना नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब जयध्वज सिंह रूल कर रहे थे तो उन्होंने एक नया एग्जाम्पशन लाया था, क्योंकि हमने देखा था क्या कि जयध्वज सिंह के समय में इन्होंने, जयध्वज सिंह ने पहला सत्र बनाने का जगह दिया था माजुली में, जहां पर पहला सत्र बनाया गया है अवनियति सत्र। तो जयध्वज सिंह ने उसी समय एक नया ओरिएंटेशन निकाला था किस तरीके का कि कोई भी केवालिया भोकत को पाइक सर्विस प्रोवाइड नहीं करना है। अब केवालिया भोकत का मतलब कौन है, किसको हम केवालिया भोकत कहते हैं, कैलिबेट डिसाइपल भी कहा जाता है। केवालिया भोकत का मतलब वो लोग जो जिन्होंने शादी वादी नहीं किया, घर संसार नहीं बनाया, सब कुछ दुनियादार छोड़ के सत्र में जाके शरण लेके बैठे हैं, कैलिबेट डिसाइपल। वो कैलिबेट डिसाइपल्स को क्या नहीं करना है, पाइक सर्विस प्रोवाइड नहीं करना है। ये एग्जाम्पशन लाया था किसने, जयध्वज सिंह ने। अब लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे। किस तरीके से, कोई अगर केवलिया भोकत नहीं भी है, शादी किया है, घर में बाल बच्चा है, फिर भी जाके वो सत्र में रह रहा है खुद को केवलिया भोकत बोल के। क्यों, केवलिया भोकत कहेगा तो उसको पाइक सर्विस नहीं देना है। तो ऐसे झूठ मूठ के केवलिया भोकत बहुत सारे थे सत्राधिकार के अंडर में। ये बात पता चला जब गदाधर सिंह को, तो गदाधर सिंह ने सबको पकड़ करके पनिशमेंट दिया। ठीक है, यूजुअली यू नो दैट भोकत सकले कि ना खाए, माछ मांस ना खाए, तो गदाधर सिंह बोले गोटे केइजनक धरी धरी माछ मांस खुवाई दिसिले आरो एওঁলোকক धरी एटा पानिशमेंट दिसिले, एटा रोड बनाबर कारण, रास्ताटा बनाबर कारण दिसिले। आजिও আছে সেই रास्ताटो, কি বুলি জানো সেই रास्ताटोक আমি, কি হয় रास्ताटो, এই ফলস কেৱলীয়া ভকতসকলে বনোৱা ৰাস্তাটোক আমি বুলি জানো ধোধৰ আলি ৰোড, যিটো আপাৰ আসামত এটা দীঘল ৰোড আছিলে। ধোধৰ আলি ৰোড ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই দিছ
ফলছ কেৱলীয়া ভকত। ফলছ কেৱলীয়া ভকত মানে তেওঁলোকৰ ঘৰ সংসাৰ আছে, ঘৰত ৱাইফ আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, তথাপিও তেওঁলোকে গৈ সত্ৰত গৈ শৰণ লৈ বহিছে আৰু নিজকে কেৱলীয়া ভকত বুলি কৈ আছে। তেওঁলোকক ধৰি পানিছমেণ্ট দিছিলে। তো এই যিটো গ্ৰয়িং ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য বৈষ্ণৱ টিনেণ্টৰ যিটো ইনফ্লুৱেঞ্চটো বাঢ়ি গৈ আছে, সেই ইনফ্লুৱেঞ্চটো কম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এই কামটো কৰিছিলে। শক্তিজমৰ কাৰণে এটা মন্দিৰ বনোৱাইছিল, উমানন্দ টেম্পল এট পিকক আইলেণ্ড, and also appointed a Brahmin named Arjuna Devagna as his chief astrologer. তো নিজৰ চিফ এষ্ট্ৰলজাৰ অৰ্জুনা দেৱগ্না তেওঁ চিফ এষ্ট্ৰলজাৰ হিচাপে এপইণ্টো কৰিছিলে। গ্ৰয়িং ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য বৈষ্ণৱ টিনেণ্টছ ইয়াতে লিখাই আছে, মই যিখিনি ক'লো যে Satras were under the royal patronage since the days of the Jayadwat Singha. So Satras have vast extent of land and they enjoyed the service from several hundreds of pikes. তো পাইক সকলেও আহি সত্ৰত কাম কৰে, প্লাস এই যিবোৰ কেৱলীয়া ভকত তেওঁলোকেও আৰামছে গৈ সত্ৰত বহি আছে। सो धीरे धीरे इन लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। तो वही इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए जयद्रथ सिंह ग्रांटेड कैलिबर डिसाइपल्स एग्जेम्पशन फ्रॉम द पर्सनल लेबर। तो जयद्रथ सिंह কি কৰিছিলে, এওঁলোকে পাৰ্সোনাল লেবাৰ প্ৰভাইড কৰিব নালাগে বুলি কৈছিলে, আৰু যিসকল ব্যক্তি ফলছলি নিজকে কেৱলীয়া ভকত বুলি গৈ আছিল, দে ৱেৰ punished the false কেৱলীয়া ভকত। And then Gadadhar Singh died in 1696 and he was succeeded by his son Lai। এওঁৰ দুজন ল'ৰা লাই আৰু লেছাই। লাই মানে ৰুদ্ৰসিংহ, লেছাই মানে নামৰূপীয়া ৰজা বুলি আমি জানো। তো নেক্সট ৰজা কোন হয়? ৰুদ্ৰসিংহ। নাও about the ৰুদ্ৰ সিংহ, that আমি সিংহৰী ঘৰ উঠা চেৰেমনিৰ বিষয়ে জানো পাইছিলো। কাৰ সময়ত আৰম্ভ হৈছিলে? সিংহৰী ঘৰ উঠা চেৰেমনি কাৰ সময়ত আৰম্ভ হৈছিলে? আরে সুদাংফা বামুণী কোঁৱৰ, এওঁৰ সময়ত আৰম্ভ হৈছিল। আমি ইয়াতে এটা কাষ্টমৰ বিষয়ে গম পাইছিলো যে when the king performed this coronation ceremony, তাৰ আগতে তেওঁ কি কৰিছিলে? এজন মানুহৰ বলি দিছিলে, মই কৈছিলো। and that custom was changed। এই কাষ্টমত চেঞ্জেছ লাই কেনেকৈ আনে যে abolish the custom of beheading a man before the ascending সিংহৰী ঘৰ and substituted a man with a buffalo। তো মানুহৰ জাগাত বাফেলো এটা বলি দিব, তেনেকুৱা এটা প্ৰথা চেঞ্জেছ আনে। আমি আৰু কি পাওঁ যে তেওঁ নিজৰ কেপিটেল শিফট কৰিলে। ৰুদ্ৰসিংহ শিফটেড হিজ কেপিটেল টু ৰংপুৰ। বহু বছৰ কেপিটেল চেঞ্জ হোৱা নাছিলে, এতিয়া আকৌ কেপিটেল চেঞ্জ হৈছে। লাষ্ট কেপিটেল কেতিয়া চেঞ্জ হৈছিলে? গড়গাঁও, শুক্লেংমুঙৰ সময়ত গড়গাঁও। তাৰপিছত গদাধৰ সিংহই চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল, বাট এগেইন শিফটেড বেক টু গড়গাঁও। তাৰপিছত ৰুদ্ৰসিংহই শিফটেড হিজ কেপিটেল টু ৰংপুৰ। পলিচি টুৱাৰ্ডছ সত্ৰাস, এতিয়া ৰুদ্ৰসিংহই তেওঁ কৈছিলে অলৰেডি যে সত্ৰৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো বাঢ়িবলৈ নিদিবা, এওঁতৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ কম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এওঁ কেনেকৈ এওঁলোকৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো কম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে যে তেওঁ এটা নতুন পলিচি লৈ আহে, known as the divide and rule policy। ডিভাইড এণ্ড ৰুল কেনেকুৱা চাব। আগতে কেনেকুৱা আছিলে, যদি এজন ব্ৰাহ্মণ সত্ৰাধিকাৰ হয়, সেই ব্ৰাহ্মণ সত্ৰাধিকাৰে কি কৰিব পাৰে? সকলোকে শৰণ ল'ব পাৰে, সকলোকে নিজৰ ডিসাইপল বনাব পাৰে, whether it is ব্ৰাহ্মণ or ক্ষত্ৰিয় or শূদ্ৰ or বৈশ্য। কিন্তু ৰুদ্ৰসিংহই নতুন পলিচি লৈ আহে আৰু কয় যে যদি কোনোবা ব্ৰাহ্মণ সত্ৰাধিকাৰ হয়, তেওঁ মাত্ৰ ব্ৰাহ্মণকে কি কৰিব পাৰিব? নিজৰ ডিসাইপল বনাব পাৰিব। যদি কোনোবা শূদ্ৰ যদি শৰণ ল'ব বিচাৰে, then he must have to go to the Shudra Mahanta, not to the Brahmin। মানে যদি কোনোবা শূদ্ৰই যদি শৰণ ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ শূদ্ৰ মহন্তৰ তাত যাব লাগিব, ব্ৰাহ্মণে তেওঁক শৰণ ল'ব নোৱাৰে। তেওঁ কি কৰিলে যে সোসাইটিৰ মাজত এটা ডিভিজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁ। কিয়নো তেতিয়া সত্ৰাধিকাৰ কি আছিলে? বেছিভাগ ব্ৰাহ্মণ, আৰু এই ব্ৰাহ্মণ সত্ৰাধিকাৰৰ আণ্ডাৰত ডিসাইপলছৰ নাম্বাৰবোৰ বহুত বেছি আছিল। এই ইনফ্লুৱেঞ্চটো কম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰে যে ব্ৰাহ্মণসকলে মাত্ৰ ব্ৰাহ্মণসকলকহে নিজৰ ডিসাইপল বনাব পাৰিব বুলি নতুন এটা পলিচি লৈ আহে তেওঁ। আৰু গোটেইখিনি ব্ৰাহ্মণসকলক কি কৰে? এটা জাগাতে
থাকিবলৈ কয় তেওঁ মাটি জাগা দি দিয়ে কত মাজুলীত যাতে তেওঁ নিজৰ চকুৰ ওচৰত ৰাখিব পাৰে যাতে তেওঁলোকৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো বাঢ়ি নাযায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে গোটেই ব্ৰাহ্মণসকলক এটাই জাগাত থাকিবৰ কাৰণে কয় গোটেই ব্ৰাহ্মণসকলে গৈ সত্ৰ বনায় কত মাজুলীত সেই সময়ত ঠিক আছে তো আজিৰ দিনতো আমি যিমান সত্ৰ পাওঁ বেছিভাগ সত্ৰ মাজুলীতে আমি পাওঁ ঠিক তো দিছ পলিচি was by the Rudra Singha to reduce the growing influence of the Vaishnava tenants. Then এওঁৰ সময়ত আৰু কি কৰে তেওঁ he created a new khel. He created a new khel called Bairagi. Bairagi মানে কি খেল মানে কি আছিলে পাইকসকলক এটা প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্ক কৰিবলৈ দিয়া যায় তাক আমি খেল বুলি কৈছিলো যে কোনোবাক বো এণ্ড এৰো ধনুষ কাঁড় বনাবলৈ দিয়া গ'ল আৰু সেই খেলটো কি বুলি কম আমি বো এণ্ড এৰো মেকিং খেল ঠিক আছে পাইক সিস্টেমত আমি খেলৰ বিষয়ে গম পাওঁ এতিয়া এটা নতুন খেল ইন্ট্ৰোডিউস কৰে ৰুদ্ৰ সিংহই সেই খেলটোক আমি কি বুলি কওঁ বৈৰাগী এতিয়া বৈৰাগী মানে কি যদি আমি আজিৰ দিনত চাবলৈ যাওঁ মই কি ক'ব পাৰিম एम्बेसडर বুলি কোৱা যায় না दूत अलग अलग कंट्री में जो एम्बेसडर्स भेजे जाते हैं हमने भारत से पाकिस्तान में एम्बेसडर भेज के रखे हैं वो भारत को पाकिस्तान के बारे में बताएंगे एम्बेसडर বুলি কোৱা যায় না ঠিক তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰিম दूत एम्बेसडर्स বুলি ক'ব পাৰিম সেই সময়ত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা নতুন পোষ্ট নতুন খেল এটা বৈৰাগী যত এওঁৰ কাম কি হ'ব বেলেগ বেলেগ দেশত ভ্ৰমণ কৰিব আৰু তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি চলি আছে কেনেকুৱা সিস্টেম চলি আছে পলিটিক্যাল সিস্টেম সোসাইটি ইকোনমি আৰ্কিটেকচাৰ কেনেকুৱা ডেভেলপ হৈ আছে তেওঁ আহোম ৰজাক তেওঁ জনাব এতিয়া এই খেলৰ ইম্পৰ্টেন্স ইমান বেছি যে মই এটা এক্সাম্পল দি ক'ব পাৰিম আপোনাক যে এই খেল ইন্ট্ৰোডিউস কৰাৰ পিছত আহোম সকলৰ কি হয় যে আৰ্কিটেকচাৰ খিনি বহু ডেভেলপ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে Before Rudra Singha, the Ahoms were very consolidated. তেওঁলোকে দুনিয়াৰ বিষয়ে একো গম নাপায় দুনিয়াত কেনেকুৱা কি চলি আছে After the introduction of this খেল they got to know about the other world বাহিৰৰ বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিৰ কেনেকুৱা ডেভেলপমেন্ট চলি আছে তেওঁ ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে এক্সপান্ড হয় আপুনি दुनिया के 8 अजूबे का नाम सुना है दुनिया में 7 थे लेकिन अभी 8 है अजूबे जैसे भारत में ताजमहल है ना ठीक उसी तरीके से एक अजूबा है जिसका नाम है चिचन इज्जा सुना है इसके बारे में इसका इमेज देखा है क्या आपने ये चिचन इज्जा दिस इज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड ठीक है अब आप देखिए कि सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अहोम किंगडम में भी दिखाई देगा इसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अहोम किंगडम में भी दिखाई देगा ठीक है कहाँ है ये पेनिनसुला मेक्सिको में अब अहोम किंगडम में कहाँ देखते हैं आप देखिएगा इसका नाम सुने हैं the structure which is very similar with the Chichen Itza, wonder of the world. वो सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर अहोम किंगडम में कैसे क्रिएट हुआ होगा, कैसे बनाया गया होगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ हुम, बैरागी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है यहां पर। अब लाइक सिमिलरली और भी खेल इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे नॉट टू मच इंपॉर्टेंट बट नाम याद रख लीजिएगा, कटौकी खोंद। और इनके ही समय से पहली बार बिहू वाज सेलिब्रेटेड इन द अहोम रियलम। ठीक है,
पूरे 7 दिन का बिहू सेलिब्रेट किया जाता है पहली बार अहोम कोर्ट के अंदर में। एंड देयर वर अ नंबर ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट लाइक द कविराज चक्रवर्ती, इनके ही कोर्ट में थे, जिन्होंने क्या लिखा था? कविराज चक्रवर्ती ने द फेमस ड्रामा शंख सुधा वध एंड ऑल्सो ट्रांसलेटेड द अभिज्ञानम शकुंतलम एंड ब्रह्म विवर्त पुराण इनटू आसामीज। तो ऐसे फैक्चुअल सवाल पूछ लेता है कि बताइए ब्रह्म विवर्त पुराण किसने लिखा था आसामीज में, या अभिज्ञानम शकुंतलम को किसने ट्रांसलेट किया था आसाम में? ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेता है। ही ऑल्सो बिल्ट व्हाट? कारेंघर, जयसागर टैंक, जयदोल, नामदांग स्टोन ब्रिज, इसके बारे में आपने सुना होगा, है ना? एक ही स्टोन को काट करके ब्रिज बनाया गया है, बड़ा सा पत्थर को काट करके। इन्होंने पहली बार क्या किया था कि रोंगघर भी बनवाया था, बट विथ द बैम्बूज, काठ आरु बाहेरे बनवा गई बोली कहा जाए। प्रथम बार रोंगघर कोने बनवाइছিলে? रुद्रसिंहय बनवाइছিলে, बट नॉट द प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर। प्रथम बार तेও काठ आरु बाहेरे बनवाइছিল रोंगघर। एंड सिमिलरली कारेंघर, जयसागर टैंक, जयदोल, नामदांग स्टोन ब्रिज are constructed by Rudrasingha. Next, if we talk about the शिव सिंह, अगर आप हमें पूछो शिव सिंह के बारे में क्या हुआ था, तो देखिए कि शिव सिंह के समय में इनको किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया था कि अगर तुम खुद राजा बन के बैठे तो मारे जाओगे। ठीक है, इनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि अगर तुम खुद राजा बन के बैठोगे तो मारे जाओगे। तो बेचारे क्या करते हैं कि उनका ये एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते थे ना, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो चीफ क्वीन थी जिनका नाम था फुलेश्वरी, उनको राजा बना दिया और उनको क्या बनाया? सुप्रीम बेस्ट, सुप्रीम पावर उनके हाथ में छोड़ दिया। वो खुद राजा नहीं बने, फुलेश्वरी को सुप्रीम रोजा बनाया गया, जिसको क्या कहा जाता था? बोर रोजा। तो फुलेश्वरी अपनी बीवी को उन्होंने राजा बना दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? बोर रोजा कहते हैं, बोर रोजा 1। ठीक है, फुलेश्वरी। अब फुलेश्वरी क्या करती है? शी अटेम्प्टेड टू मेक शक्तिज्म एज द स्टेट रिलीजन। दैट मीन्स शक्तिज्म, शक्ति पूजा करा, देवी पूजा करा। वी नो दैट द दुर्गा पूजा केम टू बी सेलिब्रेटेड इन द अहोम रियलम ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सुखाम्फा पूरा राजा। उनके समय से ही दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं हम अहोम किंगडम के अंदर। लेकिन फुलेश्वरी क्या चाहती है कि शक्तिज्म को स्टेट रिलीजन बनाया जाए, ये कोशिश करती है। ऑलरेडी सोसाइटी में किसका इन्फ्लुएंस था? वैष्णविज्म का इन्फ्लुएंस था, है ना? सत्र या इसका कल्चर बहुत ज्यादा न्यू वैष्णवाइट कल्चर चल रहा था आसाम में। फुलेश्वरी क्या करती है कि इसको सप्रेस करके शक्तिज्म को स्टेट रिलीजन बनाने की कोशिश किया। इन्होंने एक दिन अहोम किंगडम के अंदर इन्होंने क्या किया, एक दिन दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोगों को बुलाया, सारे 17 को भी बुलाया, 17 या उनके डिसाइपल्स को भी बुलाया। ठीक है, और आए थे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग। तो एक दिन फुलेश्वरी ने क्या किया, जो दुर्गा माँ का मूर्ति है उसके सामने अपना सर झुकाने के लिए कहा, हेड डाउन करने के लिए कहा। यूजुअली द वैष्णवा पीपल डू नॉट वर्शिप आइडल, मूर्ति को पूजा नहीं करते हैं। और जब दुर्गा माँ के मूर्ति के सामने इनको अपना सर झुकाने के लिए कहा गया तो इनके मन में खराब लग जाता है, हम नहीं करते, हमको जबरदस्ती क्यों करवाया जा रहा है। तभी से एक सत्र था जिसका नाम था, हम देखेंगे उस सत्र के बारे में, एक सत्र है जिसका नाम है मायामारा सत्र। मायामारा सत्र फाउंडेड बाय द अनिरुद्ध देव, अनिरुद्ध भूया भी कहते हैं। ये सत्र के लोगों को ये बात बिल्कुल खराब लग जाता है और वो लोग मन ही मन सोचने भी लग जाते हैं कि अगर किसी दिन मौका मिला तो हम नहीं छोड़ेंगे। यहीं से इन लोगों के मन में रिवोल्ट या रिवोल्यूशन करने का बात
ख्याल आने लगता है। कब? जब इनको ये मूर्ति के सामने अपना सर झुकाने के लिए कहा जाता है। तो फुलेश्वरी ऑल्सो suppressed the age-old Ahom customs of burying their dead and compelled them to take cremations। तो पुराना जो कस्टम्स था उसको भी कि मरने के बाद क्या किया जाता था, समाधि बनाना, उसको भी ये बदलना चाहती थी। Then Fuleshwari established a number of tolls for spreading the education amongst her subject। उन्होंने अपने बारे में एजुकेशन, लोगों को ज्ञान देने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया। उनमें से एक इंपॉर्टेंट टूल था कि उन्होंने क्या किया, कॉइन, अहोम का जो कॉइन था उसमें बदलाव लाया। पहली बार अहोम का कॉइन किसने बनवाया था? बताइए, ऑनलाइन आप लोग भी बताइए, आप लोग भी बताइए। अहोम का कॉइन इसे भूलने से कहाँ होगा? सुक्लेंगमुंग, सुक्लेंगमुंग ने बनवाया था। अब इन्होंने कॉइन का शेप बदल दिया, कॉइन में अपना नाम और अपने हस्बैंड का नाम लिख लिया इन्होंने। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। इन्होंने स्क्वायर साइज कॉइन बनाया और उन्होंने अपना नाम और अपने हस्बैंड का नाम कॉइन पर लिखना शुरू किया। ठीक है, शी कंस्ट्रक्टेड द बोरदोल, गोसाईदोल एंड देवीदोल। इसके बाद बोर रोजा 1 यानी कि फुलेश्वरी का डेथ होता है 1731 में। राजा मन ही मन सोचने लगे, अगर मैं राजा बन के बैठा होता तो मैं मर जाता, क्योंकि उसको तो कहा गया था कि आपको राजा नहीं बनना है, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी को राजा बनवाया था। मर गई बेचारी। अब उन्होंने उनकी बहन से शादी किया। ठीक है, कौन? द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू नहीं, द्रौपदी, ऑल्सो नोन एज अंबिका और मदनविका। अब इनके समय में इंपॉर्टेंट क्या है कि अंबिका ने क्या किया था कि एक स्कॉलर को बुलवाया जिनको हाथी के ऊपर काफी ज्यादा नॉलेज था, ज्ञान था। वो स्कॉलर का नाम क्या है? सुकुमार बोरकाइट। इनको बताया गया कि आप जो भी जानते हो हाथी के ऊपर, जो भी ज्ञान आपके पास है, आप एक कागज में लिख के बताओ, बुक में लिख के बताओ। तो उन्होंने जो बुक लिखा, उसी बुक को हम क्या कहते हैं? हस्ती विद्यार्णव कहते हैं। हस्ती विद्यार्णव, रिटन बाय सुकुमार बोरकाइट। एंड इन्होंने क्या किया? शिवसागर एंड शिवदोल, शिवसागर द टैंक एंड शिवदोल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द्रौपदी। ठीक है, बहुत बार ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसको गलत करके आ जाते हैं, नाम याद नहीं रहता है। द्रौपदी जो कि बोर रोजा 2 है। बोर रोजा 1 वाज फुलेश्वरी, द्रौपदी वाज बोर रोजा 2। उसके बाद जब द्रौपदी का भी डेथ होता है तो राजा तीसरा शादी करते हैं। कब? 1738 में, जिनका नाम था एनादोरी और उनको अहोम नाम दिया जाता है सर्वेश्वरी बोर रोजा, या फिर बोर रोजा 3 भी कहा जाता है, बोर रोजा 3। ठीक है, तो शिव सिंह के समय में हमें 3 बोर रोजा का नाम मिलता है। बोर रोजा 1 फुलेश्वरी, बोर रोजा 2 द्रौपदी, बोर रोजा 3 एनादोरी बा सर्वेश्वरी बोर रोजा। और शी कंस्ट्रक्टेड केरी रामजाओ दोल, केरी रामजाओ दोल इन डेडिकेटेड टू हर मदर इन लॉ। तो 3 बोर रोजा का नाम याद रखना है। उसके बाद शिव सिंह का ही डेथ हो जाता है। जब शिव सिंह का डेथ हुआ तो नेक्स्ट अहोम राजा कौन बने? नेक्स्ट अहोम राजा बनते हैं प्रमत्त सिंह, जो कि वो अहोम राजा जिन्होंने क्या किया था? प्रमत्त सिंह ने रोंगघर, जो प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर रोंगघर इन्होंने बनवाया था। ठीक है, रीबिल्ड द रोंगघर इन द प्रेजेंट फॉर्म। एंड ऑल्सो शुक्लेश्वर एंड रुद्रेश्वर टेम्पल एट गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में यही सामने ये वाला टेम्पल, शुक्लेश्वर एंड रुद्रेश्वर टेम्पल जो है, ये प्रमत्त सिंह ने बनवाया है। अब नेक्स्ट अगर बात करें इनके बाद राजेश्वर सिंह के बारे में,
तो राजेश्वर सिंह को ना हम शाहजहान एमोंग्स द अहोम भी कहते हैं, अहोम फॉकलर शाहजहान। क्यों? क्योंकि इनके समय में काफी ज्यादा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि कारेंघर कंप्लीट फॉर्म में, तलातल घर, वशिष्ठ आश्रम, नवग्रह मंदिर, चित्राचल मंदिर, हरगौरी देवालय, काफी सारा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होता है इनके समय में। जैसे कि शाहजहां ने क्या किया था, ताजमहल बनवाया था, है ना, एक सुंदर सा आर्किटेक्चर डेवलप किया था। सिमिलर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट अहोम किंगडम के अंदर कारेंघर, तलातल घर, असम का ताजमहल हम कह सकते हैं। तलातल घर के बारे में आपको पता होगा, है ना, जो 7 स्टोरेज हाउस था, ऊपर 3 नीचे 4, अंडरग्राउंड कारेंघर से लेकर तलातल घर लगभग 25-30 किलोमीटर से भी ज्यादा का रास्ता है। अंडरग्राउंड टनल बनवाया गया था, ऐसा टनल कि आप कारेंघर से, आप तलातल घर से अंदर गए तो 25-30 किलोमीटर आप अंदर ही अंदर जाओगे और डायरेक्टली कारेंघर पहुंचोगे। और इसके अंदर कई सारे गुप्त रास्ता भी थे जो अलग अलग जगह पर निकलते थे, ठीक है, ताकि अगर कोई इन्वेजन हुआ राजा पर तो राजा को सेफली बचाया जा सके। एक तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भी निकलता है ये टनल का एक रास्ता, ठीक है, ताकि राजा को यहाँ से स्केप भगवाने में मदद मिलता है। तो ऐसा एक आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट अहोम किंगडम के अंदर उस समय जो हुआ था, आज तक ऐसा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट नहीं कर पाया है कोई भी। ही इज ऑल्सो नोन एज द शाहजहां अमॉन्ग्स द अहोम्स, अहोम फॉकलर शाहजहां बोलियो जाना जाए, ठीक है। अब इनके समय में हमें और क्या मिलता है, तो इनके समय में हमें मिलता है अबाउट द लोता कोटारोन, क्योंकि यहां पर जब राजेश्वर सिंह रूल कर रहे थे अहोम के राजा, तो यहां मणिपुर में बर्मीज ने अटैक किया और मणिपुर के जो राजा थे, मणिपुर के राजा ने अहोम के राजा से मदद मांगी, ठीक है। मणिपुर के राजा जब इनसे मदद मांगते हैं, मणिपुर के राजा जय सिंह जब इनसे मदद मांगते हैं, तो राजेश्वर सिंह ने आर्मी भेज दिया मणिपुर के राजा को मदद करने के लिए, अहोम आर्मी को। और अहोम आर्मी जब ये लड़ाई करने जा रहे थे, मणिपुर के राजा को मदद करने जा रहे थे टू फाइट विद द बर्मीज, तो ये अहोम आर्मी को क्या करना पड़ा था, जंगल में लता बन काटी काटी যুদ্ধ কৰিব লগা হৈছিলে বোলে, আগবাঢ়ি যাব লগা হৈছিলে। সেইকাৰণে সেই যুদ্ধটোক আমি কি বুলিও জানো, দিস ইজ অলসো नोन एज द लता कोटारोन, लता कोटारोन। तो अहोम राजा ने मदद किया था मणिपुरी किंग को, इसीलिए मणिपुरी किंग जय सिंह ने अपनी बेटी कुरंगनयानी को अहोम राजा राजेश्वर सिंह के पास भेज दिया, शादी करके दिया था गिफ्ट के तौर पर। एंड राजेश्वर सिंह के समय में और क्या दिखाई देता है कि द नंबर ऑफ पाइक्स इन द गोट, याद कीजिए पाइक सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोमाई तामुली बोरबोरुआ, वेयर 4 pikes formed a unit called goat, and one goat have to provide service for 1 year। ये मोमाई तमुली बोरबोरुआ ने बनाया हुआ सिस्टम था, जहां पर हर गोट में 4 पाइक होते और हर पाइक को कितना 3 महीना करके काम करना पड़ता, 1 साल हो जाता है ऐसे कंप्लीट। अब ये स्ट्रक्चर में बदलाव लाया गया, किस तरीके का बदलाव कि अभी क्या होगा, हर गोट में बस 3 पाइक रहेंगे और इन लोगों को 1 साल सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहले पाइक का नंबर गोट में 4 हुआ करता था, अब पाइक का नंबर घटाकर 3 बना दिया गया। अब जब पाइक का नंबर घटाकर 3 बना दिया गया तो हर एक पाइक को कितना महीना काम करना पड़ेगा, 4 महीना करके काम करना पड़ेगा 1 साल कंप्लीट करने के लिए। तो पहले हर एक पाइक 3 महीना काम करते थे, लेकिन अब से हर एक पाइक 4 महीना करके काम करेंगे। ये पाइक सिस्टम में ये बदलाव लाया गया इनके समय में। क्या समझ में आ रहा है? ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है? देन इनके समय में हमें और क्या दिखाई देता है, इन द एंड ऑफ हिज रूल
राजेश्वर सिंह के रूल के अंतिम समय में हमें मिलता है एक फिर से बोरबोरुआ पावरफुल हो जाते हैं। कौन बोरबोरुआ? कृति चंद्र बोरबोरुआ पावरफुल हो जाते हैं। वो भी कैसे, देखते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रूल ऑफ राजेश्वर सिंह कृति चंद्र बोरबोरुआ बिकेम वेरी पावरफुल। कि एक बोरगुहाई जिनका नाम था नुमोली बोरगुहाई, उन्होंने एक बुरंजी लिखा था, जिस बुरंजी का नाम है सकरीफेटी बुरंजी। जिस बुरंजी के अंदर उन्होंने क्या किया कि कुछ बोरबोरुआ के ओरिजिन के विषय में कुछ गलत लिख दिया। ठीक है, अब ये जब बुरंजी पब्लिश किया गया या ये जब बुरंजी कृति चंद्र बोरबोरुआ ने पढ़ा तो बोरबोरुआ के ओरिजिन के विषय में कुछ गलत लिखा है, तो ये गुस्से में आ जाते हैं। इन्होंने सारा का सारा सकरीफेटी बुरंजी को जला दिया और गुस्से में वो जो सामने मिले सबको पनिश कर रहे थे वो। ठीक है, अब राजेश्वर सिंह का डेथ हो जाता है और नेक्स्ट अहोम राजा आते हैं कौन? लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह नेक्स्ट अहोम राजा बन गए और कृति चंद्र बोरबोरुआ क्या कर रहे थे? जो मिलेगा उसी को पीट रहे थे। ये कृति चंद्र बोरबोरुआ के ऑर्डर में सबको पीटा जा रहा था। इतने में दो व्यक्ति नाम क्या? नाहर खोरा एंड राघव मोरान। कहाँ लिखा है नाम? नाहर खोरा एंड राघव मोरान were mercilessly beaten at the orders of कृति चंद्र बोरबोरुआ। इन दोनों को भी पीट दिया। जब वो गुस्से में सबको पीट रहे थे तो इन दोनों को भी पीट दिया इनके आदमी ने। ठीक, कृति चंद्र बोरबोरुआ के आदमी ने। अब ये दो कौन है? नाहर खोरा एंड राघव मोरान। ये कौन है? दे आर मोआ मोरियस हम कहते हैं। मोआ मोरिया मतलब कौन? किसको मोआ मोरिया कहा जाता है? तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी माया मारा सत्र के बारे में। सत्र का नाम माया मारा सत्र। इसके फाउंडर अनिरुद्ध भूया या अनिरुद्ध देव, और इसके जो डिसाइपल्स है, माया मारा सत्र के जो डिसाइपल है, उनको मोआ मोरिया कहा जाता है। सत्र का नाम है माया मारा और इनके डिसाइपल को मोआ मोरिया या फिर पुरानी भोकत भी कहा जाता है, या फिर इनमें ज्यादातर लोग मोटॉक या मोरान कम्युनिटी से थे, तो मोटॉक्स भी कहा जाता है या मोरान्स भी कहा जाता है। और ज्यादातर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मोआ मोरियास ही कहते हैं। तो ये नाहर खोरा और राघव मोरान, ये दोनों कौन थे? ये दोनों मोआ मोरियास थे। जब इन दोनों को पीटा गया, ठीक है, बुरी तरीके से, तो होता क्या है? याद कीजिए कि माया मारा सत्र के लोग, इन लोगों के मन में पहले से एक विचार था कि हमें अगर मौका मिला तो हम रिवोल्ट करेंगे। कब से? फुलेश्वरी के समय से, है ना? जब फुलेश्वरी ने क्या किया था? मूर्ति के सामने हेड डाउन करने के लिए कहा था। उसी समय से ये लोगों के मन में एक विचार चल रहा था कि मौका मिला तो हम क्या करेंगे? अहोम पर अटैक, रिवोल्ट करेंगे। जब इन दोनों को पीटा गया तो मोआ मोरियस ने क्या किया? रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया अहोम के अगेंस्ट में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मोआ मोरिया रिवोल्ट। फर्स्ट मोआ मोरिया रिवोल्ट इन 1769 where मोआ मोरियस कैप्चर्ड द अहोम कैपिटल रोंगपुर। अब अहोम कैपिटल रोंगपुर कैप्चर किया। रोंगपुर में राजा कौन बैठा है? लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह को जाके ये लोगों ने कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया लक्ष्मी सिंह को। और कृति चंद्र बोरबोरुआ, जिसके ऑर्डर पे इन लोगों को पीटा गया था, इसको मार दिया गया, कृति चंद्र बोरबोरुआ को। ठीक है, अहोम राजा को ये लोगों ने कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया और कृति चंद्र बोरबोरुआ को मार दिया। अब सारा का सारा पावर कंट्रोल किसके हाथ में है? मोआ मोरियस के हाथ में है। सब कुछ जो चाहे वो कर सकते हैं मोआ मोरियस, सब कुछ कंट्रोल उन लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि राजा के कुर्सी पर किसको बैठा दिया? रामाकांत। कौन है ये? इट इज द सन ऑफ नाहर खोरा। नाहर खोरा के बेटे को राजा के कुर्सी पर बैठा दिया। और राघव मोरान जो है वो खुद क्या बन जाते हैं? खुद बोरबोरुआ बन जाते हैं। ये बोरबोरुआ को मारकर ये खुद बोरबोरुआ बन जाते हैं, राघव मोरान।
अब राजा भी किसका है? मोहमोरिया का है, मंत्री भी मोहमोरिया का है, यानी कि पावर तो सब कुछ अपने हाथ में है। लेकिन सिर्फ पावर होने से थोड़ी होता है, पावर को कैसे इस्तेमाल करे वो जानते ही नहीं है। हाथ में पावर तो सब है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करे वो नहीं आता है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, कभी भी राजा नहीं बनाया इन लोगों का। तो ज्यादा दिन वो लोग इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। एक दिन बिहू का दिन था, 14 अप्रैल 1770 बिहू का दिन था। बिहू के दिन हुसरी पार्टी बिहू खेलने के लिए गया, और वो हुसरी पार्टी जाके क्या कर देता है? राघव मोरान को मार देता है। ठीक है। एंड रामाकांत बेचारे जैसे तैसे वहां से भाग के निकले थे, लेकिन पकड़ करके उन लोगों ने रामाकांत को भी मार दिया। देखिए, सिर्फ पावर होने से नहीं होता है। हो सकता है आपके पास बहुत पावर हो, लेकिन अगर पावर को कैसे इस्तेमाल करें अगर वो पता ना हो, तो हमें हिस्ट्री से सीख मिलता है। अब फिर से इन लोगों ने क्या किया? लक्ष्मी सिंह को फिर से राजा बना दिया। ठीक है, लक्ष्मी सिंह वॉज रीइंस्टेटेड ऑन द थ्रोन। और लक्ष्मी सिंह ने क्या कहा? द माया मारा महंत एंड हिज सन, जो भी है सबको अरेस्ट करो, ऑर्डर दे दिया। ठीक है, उसके बाद इन लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद लक्ष्मी सिंह का डेथ हो जाता है। अब लक्ष्मी सिंह का डेथ हुआ तो नेक्स्ट अहोम राजा कौन आते हैं? गौरीनाथ सिंह। लक्ष्मी सिंह के बाद नेक्स्ट अहोम राजा कौन आए? गौरीनाथ सिंह। अब गौरीनाथ सिंह राजा बने ही थे, वो अपना कोरोनेशन सेरेमनी परफॉर्म करके वापस आ रहे थे अपना घर। जो राज तिलक होता है, खिंगोरी घोर उठा सेरेमनी, ये परफॉर्म गौड़गांव में ये सेरेमनी परफॉर्म करके वो अपने घर वापस आ रहे थे। उनको खबर मिलता है कि किसी ने कोरोनेशन हॉल में आग लगा दिया। वो जो सिंगोरी घोर है उस पर किसी ने आग लगा दिया। जब ये बात पता चला गौरीनाथ सिंह को, तो क्या सोचेंगे वो कि मोहमोरिया ने आग लगा दिया, क्योंकि वही रिवोल्ट कर रहे थे। तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, क्या? कि जितने भी मोहमोरियास मिलेंगे सबको मार दिया जाए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सारे मोहमोरियास को मार दो। जब राजा ने यह ऑर्डर पास किया तो अहोम आर्मी मोहमोरिया को पकड़ करके मारने लगे। जब मोहमोरिया को पकड़ करके मारने लगे तो मोहमोरिया फिर थोड़ी चुप बैठेंगे। मोहमोरियास ने फिर से रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। अब मोहमोरियास फिर से आगे बढ़े अहोम कैपिटल को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, द मोहमोरियास अटैक द अहोम कैपिटल रोंगपुर। अब इस समय अहोम राजा क्या करते हैं? अहोम कैपिटल में पूर्णानंद बुढ़ा गुहाई को रखकर वो कैपिटल को छोड़कर निकल पड़ते हैं गुवाहाटी की तरफ। ठीक है, अब अकेले ये रिवोल्ट को सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कोशिश तो कर रहे थे। दिस इज द सेकंड मोहमोरिया रिवोल्ट। ये सेकंड मोहमोरिया रिवोल्ट को खुद की आर्मी द्वारा सप्रेस करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन पूर्णानंद बुढ़ा गुहाई भी बहुत ज्यादा दिन मोहमोरियस को डिफेंड नहीं कर पाते हैं। फिर अनेबल टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल विद ओन आर्मी, गौरीनाथ सिंह रोट टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी टाइम देखिए 1780 से 1795, यानी कि ऑलरेडी बंगाल में ब्रिटिशर्स आ चुके थे, और बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को इन्होंने चिट्ठी लिखा गौरीनाथ सिंह ने, कि क्या चिट्ठी? कि आप हमें मदद कीजिए, हमारे कैपिटल में अटैक हुआ है, हमारे कैपिटल को किसी ने कैप्चर किया है, आप हमें आर्मी दे दीजिए। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी क्योंकि उनके पास बंदूक था, तो बंदूक दिखाकर रिवोल्ट को सप्रेस कर देते। ये सोचकर पहले इन्होंने चिट्ठी लिखा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले तो मना कर रहे थे, नहीं आप लोगों का आपस का मामला है, खुद सब निपटाओ आप लोग। लेकिन जब गौरीनाथ सिंह ने कहा कि आपका जितना भी खर्चा होगा हम आपको खर्चा दे देंगे, आप भेज दीजिए बस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि कैप्टन वेल्स के अंडर में 400 सिपाही 360 सिपाही को भेज दिया। ठीक है, टू सप्रेस दिस रिवोल्ट। तो सेकेंड मोहमोरिया रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए कैप्टन वेल्स और 300
60 सिपाही पहुंच गए असम, ठीक है। एंड दे सप्रेस द रिवोल्ट, दिस सेकेंड मोहमोरिया रिवोल्ट को इन लोगों ने सप्रेस कर दिया, ठीक है। वो मोहमोरियस अहोम कैपिटल छोड़कर चले गए। अब ये रिवोल्ट सप्रेस होने के बाद थॉमस वेल्स वापस जाना चाहते थे क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। तो गौरीनाथ सिंह इनको मना करते, सर आप मत जाओ, आप इधर ही रहो, आप लोगों का रहने का खाने का सब हम दे देंगे, आप रहो। लेकिन वेल्स कहते हैं नहीं, मैं तो ऑर्डर पे आया हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऑर्डर पे आया हूँ, जो काम के लिए मुझे भेजा गया था मेरा काम खत्म, अब मुझे जाना पड़ेगा, बोल के ये वापस चले गए 1795 पे। और जब ये वापस चले गए तो गौरीनाथ सिंह को लगा नहीं, मैंने अपना कैपिटल अगर यहीं पर रखा तो फिर से अटैक होगा, बोल के उन्होंने अपना कैपिटल ही शिफ्ट कर दिया फ्रॉम रोंगपुर टू जोरहाट, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट अहोम कैपिटल जोरहाट, जो किसने शिफ्ट किया, गौरीनाथ सिंह ने शिफ्ट किया था। उसके बाद उनका डेथ हो जाता है गौरीनाथ सिंह का। अब जैसे ही गौरीनाथ सिंह का डेथ हुआ तो यहां पर अब देखिए, जब गौरीनाथ सिंह कैपिटल पर नहीं थे तो अहोम कैपिटल में कौन था उस समय, एक मंत्री थे पूर्णानंद बुरागोहाई। तो गौरीनाथ सिंह का जब डेथ होता है तो फिर पूर्णानंद बुरागोहाई जो है वो क्या करते हैं, वो खुद डी फैक्टो रूलर बन जाते हैं। क्योंकि जब राजा अहोम कैपिटल में नहीं था, रिवोल्ट के समय में अहोम राजा अहोम कैपिटल में नहीं थे, गुवाहाटी गए हुए थे और अहोम कैपिटल को अकेले पूर्णानंद बुरागोहाई संभाल रहे थे। तो जैसे ही गौरीनाथ सिंह का डेथ होता है वो क्या करते हैं, कमलेश्वर सिंह को लाके राजा बनाते हैं, लेकिन वो खुद पावर में रहते हैं। बस इनको नाम का राजा बना दिया गया, लेकिन सारा का सारा पावर सब कुछ पूर्णानंद बुरागोहाई के हाथ में ही रह गया। ही बिकेम द डी फैक्टो रूलर। ये कौन है कमलेश्वर सिंह, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ द लेसाई रुद्र सिंह, गदाधर सिंह के दो बेटे लाई और लेसाई। लाई रुद्र सिंह थे, लेसाई जो है वो नामरूपीय राजा हम लोगों ने कहा था, उन्हीं के ग्रैंडसन है। इन लोग को लाके राजा बना दिया। तो इनके समय में क्या हुआ था कि तीसरी बार मोहमोरियस जो है वो रिवोल्ट करने की सोच रहे थे, ठीक है। मोहमोरियस में से भी जो मोरान्स थे, मोरान कम्युनिटी के लोग, ये लोग ज्यादा टर्बुलेंट थे और इनका लीडर सर्वानंद सिंह और भी कई सारे कम्युनिटी को लेकर इस बार रिवोल्ट करने की सोच रहे थे। इनका लीडर कौन, सर्बानंद सिंह, सोच रहे थे कि इस बार हम और जोर तोरों से रिवोल्ट करेंगे अहोम के अगेंस्ट में। तो रिवोल्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन पूर्णानंद बुरागोहाई जो है, क्योंकि पावर इसके हाथ में इस बार, पूर्णानंद बुरागोहाई ने सर्बानंद सिंह के साथ मिल करके एक एग्रीमेंट साइन किया कि आप लोग रिवोल्ट मत करो, हम आपको एक नया किंगडम दे देंगे जिस किंगडम का राजा आप ही बन जाओगे। सर्बानंद सिंह के साथ जाके बात किया और इन लोगों को अहोम किंगडम से सेपरेट करके एक सेपरेट किंगडम बना दिया गया। कौन सा, उनका एक सेपरेट किंगडम बना दिया। किंगडम का राजा कौन बने, सर्बानंद सिंह। तो इन लोगों का रिवोल्ट सप्रेस हो गया। तो मोटोक किंगडम वाज फाउंडेड बाय सर्बानंद सिंह और इनके साथ एग्रीमेंट साइन किसने किया था, पूर्णानंद बुरागोहाई ने किया था, ठीक है। तो ये रिवोल्ट कहां पर था, कैपिटल के तरफ। ये मोहमोरिया रिवोल्ट, फर्स्ट मोहमोरिया रिवोल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ लक्ष्मी सिंह, सेकेंड गौरीनाथ सिंह, थर्ड कमलेश्वर सिंह। थर्ड रिवोल्ट के समय में क्या कर दिया गया, छोटा सा एरिया लेकर नया ये किंगडम आपका है बोल के छोड़ दिया गया। कौन सा एरिया है, मोटोक किंगडम, तिनसुकिया, ठीक है, वो वाला एरिया दे दिया गया। और कामरूप कैपिटल में, सॉरी अहोम कैपिटल में तो ये रिवोल्ट चल रहा था। दूसरा रिवोल्ट उसी समय हमें मिलता है, कौन सा, कहां पर, कामरूप में, नॉट इन द कैपिटल, कामरूप में, ठीक है। जिस रिवोल्ट को हम क्या कहते हैं, द्वंद्वा द्रोह भी कहते हैं। द्वंद्वा द्रोह, दैट रिवोल्ट वाज लॉन्च्ड बाय टू ब्रदर, हरदत्त एंड वीरदत्त चौधरी। हरदत्त एंड वीरदत्त चौधरी ने ये रिवोल्ट लॉन्च किया था कामरूप पर, ठीक है। किसके अगेंस्ट में, अहोम के अगेंस्ट में। बट दिस रिवोल्ट was single-handedly suppressed by an officer
नोन एज कोलिया भोमोरा बोरफुकन। ठीक, कोलिया भोमोरा बोरफुकन ने अकेले इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था। ये वो कोलिया भोमोरा बोरफुकन है जिन्होंने ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ब्रिज बनाने की कोशिश की थी। कहां पर? कनेक्टिंग तेजपुर एंड कोलियाबोर। ठीक है, भले ही वो ब्रिज ये खुद कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बाद में जब भारत सरकार उसी ब्रिज को कंप्लीट करता है 1967 में, तो वो ब्रिज को इन्हीं के नाम पे रख देता है, कोलिया भोमरा सेतु, कोलिया भोमरा ब्रिज, which connects the present day तेजपुर एंड कोलियाबोर। ठीक है, ओके। अब मोहमोरिया का रिवोल्ट तो सप्रेस हो गया, खत्म। 3 रिवोल्ट, लक्ष्मी सिंह, गौरीनाथ सिंह और कमलेश्वर सिंह के समय में। अब कमलेश्वर सिंह डाइड बिकॉज ऑफ द स्मॉल पॉक्स एंड नेक्स्ट अहोम राजा बन जाते हैं चंद्रकांत सिंह। अहोम राजा बन गए चंद्रकांत सिंह, लेकिन अभी भी पावर किसके हाथ में है? पूर्णानंद बुरागोहाई के हाथ में ही है अभी भी पावर। ठीक है, ही इज स्टिल द डी फैक्टो रूलर। चंद्रकांत सिंह को पता लगा क्या कि मैं तो राजा नहीं बन सकता, राजा हूं लेकिन मेरे पास पावर नहीं है। तो ये कोशिश कर रहे थे चंद्रकांत सिंह कि जैसे तैसे पूर्णानंद बुरागोहाई को हटाएं और पावर में अपने पास रखूं। सोच रहे थे पूर्णानंद बुरागोहाई यानी कि अहोम के 5 मंत्री में से एक, बुरागोहाई, बोरगोहाई, बोरपात्र गोहाई, बोरबरुआ, बोरफुकन, 5 मंत्री में से एक बुरागोहाई, और 4 मंत्री भी तो है। इन चारों में से एक जो क्या नाम से जाने जाते हैं? बोधन चंद्र बोरफुकन, ये भी एक मंत्री है। बोधन चंद्र बोरफुकन, पूर्णानंद बुरागोहाई ये भी एक मंत्री है। ये क्या सोचते हैं बोधन चंद्र बोरफुकन, क्यों ना मैं ये पोजीशन ले लूं। ये पोजीशन मतलब डी फैक्टो रूलर, कि सारा पावर मेरे हाथ में मैं कर लूं, जैसे पूर्णानंद बुरागोहाई के हाथ में है। पूर्णानंद बुरागोहाई को हटा देते हैं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। बोधन चंद्र बोरफुकन ये सोच ही रहे थे कि पूर्णानंद बुरागोहाई को पता चलता है बोधन चंद्र बोरफुकन के बारे में कि बोधन चंद्र बोरफुकन जो है वो इनका पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है। तो पूर्णानंद बुरागोहाई ने आर्मी भेज दिया इसको पकड़ने के लिए, बोधन चंद्र बोरफुकन को पकड़ने के लिए आर्मी भेज दिया। अब बेचारे बोधन चंद्र बोरफुकन क्या करते हैं? यहां से भाग जाते हैं। पहले किसके पास गए? ब्रिटिशर के पास, कि मुझे बचाइए, मदद कीजिए। पहले बोधन चंद्र बोरफुकन गए ब्रिटिशर के पास, मुझे मदद कीजिए, मुझे मारना चाहते हैं। ठीक, लेकिन इस बार ब्रिटिशर ने मदद करने से मना कर दिया। आप लोगों का आपस का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है कर लो। तो बोधन चंद्र बोरफुकन इस बार कहां चले गए? इस बार ये चले गए बर्मा, म्यांमार। ठीक है, बर्मीज किंग उस समय कौन थे? उस समय बर्मीज किंग थे बदौपाया। बदौपाया, इनके सामने जाके कहा बोधन चंद्र बोरफुकन ने कि आप मेरी मदद कीजिए। क्या मदद करना है? पूछते हैं ये, मुझे डी फैक्टो रूलर बनना है, वो मुझे मारना चाहता है, मुझे उसका पोजीशन लेना है, आप मेरी मदद करें। बोधन चंद्र बोरफुकन ने जाके जैसे ही मदद मांगा बर्मीज से, बर्मीज ने इमीडिएटली हाँ कह दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो बर्मीज है, ये बर्मीज बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे आसाम में एंटर करने को। ठीक है, बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे बर्मीज आसाम में एंटर करने को। जैसे ही बोधन चंद्र बोरफुकन ने जाके इनसे मदद मांगा, तो ये इमीडिएटली आने के लिए तैयार हो गए। और 1817 में बर्मीज पहुंच जाते हैं बोधन चंद्र बोरफुकन के साथ मिलकर के। कहां? नामरूप। द फर्स्ट बर्मीज इन्वेजन। The Burmese army arrived at Namrup in the year 1817. इधर बॉर्डर में बर्मीज आर्मी पहुंच गए। जैसे ही ये बात पता चला पूर्णानंद बुरागोहाई को, पूर्णानंद बुरागोहाई ने आर्मी भेज दिया इन लोगों को रोकने के लिए। और यहाँ पर बर्मीज आर्मी और अहोम आर्मी का फाइट होता है बहुत बड़ा।
जहां पर बर्मीज ने अहोम आर्मी को डिफीट किया, हरा दिया। अब कुछ लोग दौड़ के चले आ गए पूर्णानंद बुरागोहाई के पास कि सर बर्मीज आर्मी तो अकेले नहीं आए हैं, बर्मीज आर्मी के साथ कौन भी खड़ा है, बोधन चंद्र बोरफुकन भी खड़ा है, अकेले नहीं आए हैं। जब ये बात जाके पूर्णानंद बुरागोहाई को बता दिया गया, बेचारे पूर्णानंद बुरागोहाई सोचने लगते हैं कि साला कैसा दोगला इंसान है, अपने ही देश में अटैक करवा रहा है ना। बेचारे हार्ट अटैक से मर गए पूर्णानंद बुरागोहाई, ठीक है। और बोधन चंद्र बोरफुकन जो है वो कहां पहुंच गया, अहोम कैपिटल जोरहाट पहुंच जाता है और पूर्णानंद बुरागोहाई का पोजीशन ले लेता है। कौन? बोधन चंद्र बोरफुकन, ठीक है। यानी कि अभी पावर किसके हाथ में है, बोधन चंद्र बोरफुकन, क्योंकि पूर्णानंद बुरागोहाई मर गए। और राजा कौन है, चंद्रकांत सिंह, ठीक है। राजा के हाथ में कुछ पावर है ही नहीं, बस नाम का राजा है, ठीक है। राजा है चंद्रकांत सिंह और यहां पर कौन रूल कर रहा है, पावर किसके हाथ में, बोधन चंद्र बोरफुकन, ठीक। अब बेचारे राजा क्या करते हैं, ये भी सोचते हैं कि अरे राजा तो मैं हूं लेकिन मेरे हाथ में कुछ पावर ही नहीं है। चंद्रकांत सिंह जो है वो ना एक घोषणा करते हैं। किस तरीके का घोषणा, कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बोधन चंद्र बोरफुकन को अगर मार सकता है तो मैं उसको इनाम दूंगा, राजा घोषणा करते हैं, ठीक है। अब इतने में एक व्यक्ति जिनका नाम था रूप सिंह बंगाल, कहाँ गया, रूप सिंह बंगाल, ये कहते हैं मैं मार दूंगा। ये आते हैं और इन्होंने बोधन चंद्र बोरफुकन को सच में मार दिया, ठीक है। जिसके कारण रूप सिंह बंगाल को पुरस्कार मिला था, पैसा, कुछ पैसा मिला था पुरस्कार के तौर पे, और वो पैसों से उन्होंने एक पुखुरी बनाया, टैंक बनाया, जिस टैंक को, पुखुरी को कहा जाता है बंगाल पुखुरी, आज भी है ये बंगाल पुखुरी, ठीक है। अब चंद्रकांत सिंह राजा है, ठीक है, बोधन चंद्र बोरफुकन तो मर गए। अब इतने में क्या होता है, इतने में रुचिनाथ यानी कि पूर्णानंद बुरागोहाई के बेटे आ जाते हैं, रुचिनाथ, ठीक है। कौन? पूर्णानंद बुरागोहाई जो हार्ट अटैक से मर गए थे, उनके बेटे आ जाते हैं अपने साथ एक नॉमिनी को लेकर। नॉमिनी का नाम पुरंदर सिंह को लेकर आ गए, ठीक है, पुरंदर सिंह को लेकर आ गए। चंद्रकांत सिंह को पकड़ लिया गया, इनका दायां कान काट दिया गया, राजा से हटा दिया गया और नेक्स्ट राजा बनाया गया पुरंदर सिंह को, ठीक है। यानी कि अभी चंद्रकांत सिंह को राजा से हटाकर नेक्स्ट अहोम राजा किसको बनाया गया, पुरंदर सिंह को। देखो ये पीरियड जो हम देख रहे हैं, दिस इज वेरी अनस्टेबल पीरियड, अंतिम समय है यह अहोम का, और यहाँ पर काफी इंस्टेबिलिटी हमें दिखाई देता है। फिर से किस तरीके का, कि हमने जो देखा था पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि राजा होते हुए भी राजा के पास पावर नहीं है, सिमिलर सिचुएशन हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि राजा तो है लेकिन बस नाम का, पावर किसी और के हाथ में है, ठीक है। अब नेक्स्ट चंद्रकांत सिंह को हटाकर कौन, पुरंदर सिंह को राजा बनाया ही था कि इस बार फिर से बर्मीज आ गए, इस बार फिर से बर्मीज आ गए। किसी ने बुलाया नहीं था इस बार बर्मीज को, पहली बार तो बोधन चंद्र बोरफुकन ने बुला के लाए थे, इस बार किसी ने बुलाया नहीं था, इस बार खुद ब खुद आए। क्या बोलते हुए, बोधन चंद्र बोरफुकन को किसने मारा, या फिर चंद्रकांत सिंह को राजा से किसने हटाया, ठीक है। दो रीजन लेकर आ गए, हम बोधन चंद्र बोरफुकन का मौत का बदला लेने आए हैं और चंद्रकांत सिंह को फिर से राजा बनाने आए हैं। बर्मीज पहुंच गए 1819 में दूसरी बार, दिस इज द सेकंड बर्मीज इन्वेजन। एंड ये जब पहुंच गए तो अहोम राजा पुरंदर सिंह और डी फैक्टो रूलर रुचिनाथ बुरागोहाई, ये दोनों भाग गए, अहोम कैपिटल को छोड़कर गुवाहाटी भाग गए, ठीक है। ये जब दोनों भाग गए तो चंद्रकांत सिंह को फिर से राजा बना दिया गया, ठीक। अब बेचारे चंद्रकांत सिंह मन ही मन सोच रहे होंगे, मैंने तो बुलाया ही नहीं था इन लोगों को, ये लोग आके मुझे राजा क्यों बना के चले गए, कहीं इनका इंटेंशन कुछ और तो नहीं है, कहीं इनका इंटेंशन कुछ और तो नहीं है। और कुछ और मतलब क्या,
कहीं इनका इंटेंशन असम में रूल करना तो नहीं है, मन ही मन सोच रहे थे। और वो क्या कर रहे थे कि अगर फिर से अगर बर्मीज आए तो उनको हम आगे ही रुका सके। उसके लिए उन्होंने जयपुर में फोर्ट्स बनाना, दुर्ग बनाना शुरू किया, जयपुर में फोर्ट बनाना शुरू किया। और उनके मन में जो शंका था कि ये शायद फिर से आएंगे, और हाँ ऐसा ही हुआ। 1821 में ये लोग फिर से आ गए, बर्मीज, ठीक है, फिर से आ गए। अब बेचारा चंद्रकांत सिंह अकेले क्या करेंगे, उनको क्या करना पड़ा, उनको भी अहोम कैपिटल को छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है। इससे पहले पुरंदर सिंह और रुचिनाथ दोनों भाग गए थे गुवाहाटी। और जब तीसरी बार बर्मीज ने इन्वेजन किया 1821 में, तो चंद्रकांत सिंह भी अहोम कैपिटल को छोड़कर भाग जाते हैं गुवाहाटी। अब अहोम कैपिटल में कोई नहीं है, तो ये बर्मीज क्या करते हैं, एक अहोम प्रिंस जिसका नाम था जोगेश्वर सिंह, इसको राजा बना देते हैं, जोगेश्वर सिंह को। लेकिन पावर सब कुछ किसके हाथ में रह जाएगा, अब पावर सब कुछ बर्मीज के हाथ में रह जाएगा। ये तो अहोम नहीं सिखाया है ना बर्मीज को कि राजा कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बस पावर किसके हाथ में है वो मटे। तो अहोम नहीं सिखाया है, उन लोगों ने वही किया। यहाँ आके जोगेश्वर सिंह को राजा बना दिया, लेकिन बस नाम का राजा, पोपेट किंग बना दिया। अब सारा का सारा कंट्रोल बर्मीज के हाथ में है आसाम में। तो 1821 से लेकर बर्मीज जो है वो आसाम में रूल करना स्टार्ट करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1821 टू 1824 in Assam is known as the period of Burmese rule in Assam. অসমত মানৰ শাসন বুলি আমি জানো, which is very dangerous period। कहा जाता है कि ये द डार्केस्ट हिस्ट्री ऑफ आसाम कहा जाता है, द पीरियड ऑफ द बर्मीज रूल इन आसाम। वाई? क्योंकि ना वो लोग काफी टॉर्चर करते थे यहाँ के लोगों को। हर तरफ डेड बॉडी ही डेड बॉडी पड़ा हुआ दिखाई देता था रास्ते पर। कहीं पर रास्ते पर डेड बॉडी का सर नहीं है, तो कहीं हाथ नहीं है, कहीं पैर नहीं है। असमीज लड़कियों को यहाँ से पकड़ करके बर्मा ले जाया जाता था। और ये हाल के बारे में पता चलता है कब, जब आसाम में डेविड स्कॉट आए थे विजिट करने के लिए। जब आसाम में डेविड स्कॉट आए थे विजिट करने के लिए, तो डेविड स्कॉट was appointed as the agent of northeast frontier from Kasar in the south to सिक्किम in the north। नीचे कासार से लेकर ऊपर सिक्किम, ये सारा एरिया का एजेंट बना करके भेजा गया था डेविड स्कॉट को 1823 में। और ठीक है, वही एजेंट के तौर पर वो अपना जगह एरिया असम घूमने के लिए जब आए डेविड स्कॉट, तो असम का सिचुएशन उनको दिखाई दिया, पता चला उनको। तो इन्होंने इमीडिएटली डेविड स्कॉट ने ब्रिटिश के गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिख के भेजा कि असम में तो ये हालत है, आप इमीडिएटली असम में अटैक कर दो बर्मीज के अगेंस्ट में। अगर अटैक नहीं किया तो ये बर्मीज क्या पता बंगाल तक पहुंच जाएंगे और हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग असम में ही इसको रोक दीजिए, हटा दीजिए, अटैक कीजिए। तो डेविड स्कॉट ने जब ये रिक्वेस्ट किया गवर्नर जनरल से, तो गवर्नर जनरल ने क्या किया कि वार डिक्लेयर कर दिया बर्मीज के खिलाफ 1824 में, ठीक है, 1824 में, which is known as the first Anglo-Burmese war। The British in Bengal became worried about the Burmese might attack the territory, so Lord Amherst of the Governor General decided to declare war with the Burma, and the first Anglo-Burmese war was declared in 1824, 5th March 1824। Anglo means British, जो कि यहाँ पर थे, और बर्मीज मीन्स यहाँ पर जो बर्मीज थे आसाम में, इन दोनों के बीच में वार डिक्लेयर किया। 1824 में ये डिक्लेयर किया गया वार कब खत्म होता है? 1826 में, by signing a treaty। The treaty is known as
ট্রিটি অফ ইয়ান্ডাবু। ট্রিটি অফ ইয়ান্ডাবু, ইয়ান্ডাবু চুক্তি 26 ফেব্রুয়ারি, राइट 26 फरवरी 1826। जिस ट्रीटी के मुताबिक क्या बताया गया था, जिस ट्रीटी के मुताबिक बताया गया था कि, देखिए बहुत सारे बच्चे यही गलती कर जाते हैं। किस तरीके का गलती? कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ यांडाबू से असम में ब्रिटिश का रूल शुरू होता है, ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ट्रीटी में कि असम में ब्रिटिश का रूल शुरू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है वो देखते हैं। क्या लिखा है? लिखा है कि आज से असम में बर्मीज रूल खत्म। 26 लिखा मैंने, थैंक यू। 24 फरवरी 1826, थैंक यू। ये ट्रीटी क्या कहता है? ट्रीटी कहता है कि आज से असम में बर्मा का रूल, बर्मीज रूल खत्म। द बर्मा, द किंग ऑफ अबा विल रिनाउंस द क्लेम फ्रॉम असम। ये एक चीज लिखा है। दूसरा चीज और क्या लिखा है? दूसरा चीज लिखा है कि मणिपुर का राजा कौन बनेगा, ये चीज ट्रीटी में लिखा है। राजा गोविंद चंद्र वॉज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर का किंग कौन बनेगा और असम में आज से ब्रिटिश का रूल खत्म, बस ये दो चीजें ही हमें इस ट्रीटी में मिलता है। ये ट्रीटी में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आज से असम में ब्रिटिश रूल शुरू होगा बोल के। मणिपुररे आছিলে, কিয়নো আহোমৰ কোনো ৰজা নাছিলে যেতিয়া ডেভিড স্কট ইয়ালৈ আহিছিলে। যেতিয়া ডেভিড স্কট ইয়ালৈ আহিছিলে, ডেভিড স্কটে কি দেখা পালে যে অসমত কোনে শাসন কৰি আছে? বাৰ্মিজ। অসমত বাৰ্মিজ সকলে শাসন কৰি আছে। জয়ন্তীয়াৰ নিজৰ ৰুলাৰ আছিলে জয়ন্তীয়াত, মণিপুৰৰো নিজৰ ৰুলাৰ আছিলে, কাছাৰৰো নিজৰ ৰুলাৰ আছিলে, बस আহোমৰ নিজৰ ৰুলাৰ নাছিলে। ঠিক আছে, দিস ওয়াজ জয়ন্তীয়া, দিস ওয়াজ মণিপুৰ, দিস ওয়াজ কাছাৰ। কাছাৰ ডেভিড স্কটে আহি ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ আগতে এই গোটেই কেইজন ৰুলাৰৰ লগত কথা পাতিছিলে যে आप लोग हमें अटैक करने में मदद कीजिए, ये वार में मदद कीजिए। वार जब खत्म हो जाएगा, बर्मीज जब वापस चले जाएंगे तो हम आपको ही राजा बनाएंगे, आपका ही राजा बनाएंगे। এওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছিলে ডেভিড স্কটে, কিন্তু আহোমৰ কোনো নাছিল কথা পাতিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, যেতিয়া বাৰ্মিজ সকল ইয়াৰ পৰা উভতি গুচি গল, তেতিয়া মণিপুৰৰ ৰজা কোন হ'ব ট্ৰিটিতে লিখা আছে। এওঁলোকৰ লগত সেপাৰেট এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলে কাছাৰ আৰু জয়ন্তীয়াৰ লগত। সেই এগ্ৰিমেণ্ট মতে এওঁলোকৰ ৰজা বনাই দিয়ে, কিন্তু আহোমৰ কাৰো লগত কথা বতৰা হোৱা নাছিলে। বাৰ্মিজ গুচি যোৱাৰ পিছত কোনো নাছিলেও আহোম কিংডমটো ৰুল কৰিবৰ কাৰণে। তেতিয়া কি কৰা যায়? লোৱাৰ আসাম ৱাজ এনেক্সড টু দ্য ব্ৰিটিছ ডমেইন ইন দ্য ইয়াৰ 1828। 1828 চনত লোৱাৰ আসাম এনেক্স কৰি লয় ব্ৰিটিছৰ সকলে। ঠিক আছে, সো এই ব্ৰিটিছ এনেক্সেশ্যন টু আসাম আমি ক'ত কভাৰ কৰিম? আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত আমি কভাৰ কৰিম ব্ৰিটিছ এনেক্সেশ্যন টু আসাম। ঠিক আছে, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত আমি এই বাকীখিনি কভাৰ কৰিম। তো ইয়ালৈকে বুজি পাইছে? আফটাৰ গদাধৰ সিংহ, আজিৰ ক্লাছত আমি গদাধৰ সিংহৰ পৰা বাৰ্মিজ ইনভেজন বা ট্ৰিটি অফ ইয়ান্ডাবুলৈকে আমি চালো। ঠিক আছে, তো ট্ৰিটি অফ ইয়ান্ডাবুৰ পিছত আমি জানো যে মেডিয়েবল হিষ্ট্ৰী শেষ হৈ যায়। ট্ৰিটি অফ ইয়ান্ডাবুৰ পিছত অসমত ব্ৰিটিছ ৰুল আৰম্ভ হয়। ব্ৰিটিছ ৰুল আৰম্ভ হয় মানে আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীলৈ আমি সোমাই যাম। তো এই 600 বছৰৰ কালটো 1200 চনৰ পৰা 1205 বুলি ক'লেও হ'ব, 1826, এই 600 বছৰৰ কালটোক আমি মেডিয়েবল হিষ্ট্ৰী বুলি আমি জানো। ঠিক আছে, তো আমি এই 3 দিনত আমি কি চালো? আমি আহোম হিষ্ট্ৰী চালো। ঠিক আছে,
আৰু আহোম হিষ্ট্ৰী আপুনি যেতিয়া আহোম হিষ্ট্ৰী পঢ়ে তেতিয়া একেবাৰে গোটেই কেইজনৰ বিষয়ে জানিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু বা গোটেই কেইজনৰ বিষয়ে মনত ৰখাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু মই কেনেকৈ আপোনাক কৰাই আছিলোঁ, মই ছেগমেণ্ট ৱাইজ পঢ়াই আছিলোঁ। প্ৰথমে 5 জনৰ বিষয়ে ক'লোঁ, তাৰপিছত 4 জনৰ বিষয়ে ক'লোঁ, তাৰপিছত দ্য পিৰিয়ড অফ দ্য পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটিৰ বিষয়ে ক'লোঁ, তাৰপিছত গদাধৰ সিংহ, ৰুদ্ৰ সিংহ বা শিৱসিংহ আৰু 3 জনৰ বিষয়ে আপুনি চাব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি পাব মোৱামৰীয়া ৰিভল্টৰ বিষয়, লক্ষ্মী সিংহ, কমলেশ্বৰ গৌৰীনাথ সিংহ আৰু কমলেশ্বৰ সিংহ। তাৰপিছত আপুনি বাৰ্মিজ ইনভেজনৰ বিষয়ে পঢ়ক। মানে টোটেল আপুনি 5টা ছেগমেণ্ট বনাই যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে it will be very easier for you to remember the whole Assam history, the whole Ahom history. ঠিক আছে, তো ৰিভিজন কৰিব, কিয়নো মই জানো যে এবাৰ পঢ়িলে একো ক্লিয়াৰ নহয়। भगवान नहीं है हम कि एक बार पढ़ने से हो जाएगा, रोबोट भी नहीं है ऐसे ऐसे करने से हो जाएगा, है ना। तो रिवाइज कीजिए, द ओनली की इज द रिवीजन। असम हिस्ट्री यही है, अहोम हिस्ट्री यही है, ठीक है। और आप कहीं ढूंढने मत जाओ कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, इतना ही है, ठीक। थोड़ा इलाबोरेटेड कहीं मिल सकता है, लेकिन पहले बेसिक याद कीजिए जितना भी जरूरी है। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें बताइए। इसके बाद हमें कवर करना है मॉडर्न सेगमेंट को, द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ असम। तो एंशियंट से लेकर मेडिएवल खत्म किया, यहाँ तक किसी भी तरीके का एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। किसी भी तरीके का डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक। लिखा है क्या यहाँ पर, ये होगा ईयर 1539, ठीक, वही ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है 1539। तो आज का सेगमेंट को हम यहीं खत्म करें, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।